हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है ऑसिलेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑसिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे क्लियर कर देता हूँ, देन आफ्टर दैट विल गो फॉर द in details about oscillation. First of all, what is the oscillation or oscillatory motion? इसको हम लोग समझते हैं कि oscillatory motion या oscillation क्या होता है। We know the different types of the motion like circular motion, rotatory motion, uh, linear motion. So similarly there are one of the type of motion, that is the oscillatory motion, and that is also called as oscillation. तो oscillation क्या होता है? तो oscillation में the body performs the to and fro motion or up and down motion about its mean position along the same path, that is called as the oscillation या oscillatory motion. It means what? Let us consider this is an object है प्लेस्ड ऑन सरफेस। एक सरफेस पे अपना ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सरफेस है अपना, ये सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे, लाइक दिस। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म द टू एंड फ्रो मोशन along the same path about its mean position, that is called as the oscillatory motion or oscillation. That is called as the oscillatory motion or oscillation. Next, periodic motion. Periodic motion क्या होता है ये जरा हम देखते हैं यहाँ पे। The type of motion in which body perform the same path after equal interval of time. मतलब जैसे कि ये मोशन था, ये बॉडी आगे गया पीछे आया, इसको 2 सेकेंड लगा, फिर आगे पीछे अगेन 2 सेकेंड, मीन्स एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इफ इट्स परफॉर्म द सेम पाथ देन दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन. When this periodic motion is the oscillatory motion, that type of motion is called as the simple harmonic motion. That is also called as the SHM. That is also called as the SHM, simple harmonic motion. तो अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा what is the simple harmonic motion, then you will answer the periodic oscillatory motion is called as the simple harmonic motion. Periodic में अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट पीरियड. पीरियड क्या होता है? The total time taken to complete one oscillation, it is denoted by capital T. एक oscillation complete करने के लिए कितना टाइम लगेगा, that is called as the periodic motion. After that, frequency. Frequency क्या होता है? Frequency is the number of oscillation per second, or you can say that the reciprocal of, you can say that the reciprocal of time period. Reciprocal of time period is also called as the frequency. It is denoted by f or n. f से भी डिनोट करते हैं, n से भी डिनोट करते हैं. Reciprocal means 1 upon t. 1 upon t, that is reciprocal. That is called as the frequency. That is called as the frequency. Understood? I hope ये पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा. Periodic oscillatory motion, periodic motion. The periodic oscillatory motion is the SHM, simple harmonic motion, and after that period, frequency. ये पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए रहेंगे बेटा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रिंग ऑसिलेशन. व्हाट इज द स्प्रिंग ऑसिलेशन? ये कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच हैव अटैच्ड विद द स्प्रिंग. मैं क्या करता हूँ, ये स्प्रिंग के ऊपर एफ फोर्स लगा के मैं इसको पुल करता हूँ आगे की तरफ. व्हेन आई विल पुल द स्प्रिंग from its mean position, this is its original position, mean position, equilibrium position, that is called as mean position. So when I will apply the force in the forward direction and it displace by the displacement x, तो ये बॉडी के अंदर, स्प्रिंग के अंदर इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, which by the help of this restoring force, जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, बॉडी अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ आएगा. जैसे अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ आएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है. ड्यू टू दैट इन थर्ड केस अपने मेन पोजीशन से कंप्रेस होके इस तरफ डिस्प्लेस हो जाता है. तो अगेन जब ये इस तरफ मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस होगा, एट दैट टाइम ये स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर एक्सर्ट
होता है. Means you can say restoring force is directly proportional to your displacement, but direction of both are opposite. So from here your direction of both here opposite, your restoring force F is directly proportional to the displacement but direction opposite, so that it will be minus. After removing your proportionality sign, you will get the constant, so constant K, which is called as the proportionality constant, which is called as the proportionality constant or spring constant. Proportionality constant और spring constant इसको हम लोग बोल देंगे spring constant. इतना बात आपको समझ में आ गया? यस सर. नाउ हियर जो आपका k होता है बेटा, k इज इक्वल्स टू होता है m ओमेगा स्क्वायर. k इक्वल्स टू क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर. Omega is the angular frequency which is also equals to root of k by m, which is also equals to root of k by m. आगे in future we will use this relation, so आपको मैं यहीं पे इसको explain करके दे दिया. तो from here you will get the restoring force formula, that is the m omega square x. M omega square x. This is the formula of your restoring force. This is the formula of your restoring force. Understood? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा. Restoring force, formula for the restoring force. Okay, now we will discuss now about the differential equation of the linear SHM. Differential equation of the linear SHM. Since you know that the formula for the oscillatory motion restoring force, that is also equals to minus m omega square x. बराबर है. Your force F is all, since this is your equation number 1, you know that, we know that, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं since we know that f equals to minus m omega square x. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट करता हूँ मैं, ये होता है and f is also equals to m into a, mass into acceleration. तो इक्वेशन नंबर 2 from 1 and 2, अगर मैं from 1 and 2 बात करूँ इधर पे आपसे, तो your m into a will become minus of m omega square into x. तो mm gets cancel from here, तो acceleration will be equals to omega square x. This is the acceleration formula. Again, acceleration formula. Again, acceleration is the acceleration is the velocity upon time, right? dv by dt, that is equals to minus omega square x. And since velocity equals to dx upon dt, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा. देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो जाएगा. ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट अप करेगा बेटा, तो आपका वैल्यू इधर से मिल जाएगा एक्सेलरेशन के d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो यू विल गेट d2x अपॉन dt स्क्वायर plus omega square x equals to 0. This is your differential equation of linear SHM. This is what? Differential equation of linear SHM. Linear SHM, when the body perform the simple harmonic motion linearly. आपका अभी देखना स्प्रिंग वाइब्रेशन जो होता है लीनियर था, सो दिस इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अंडरस्टूड माय डियर? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया एवरीवन अच्छे से? वेल, वेरी गुड. तो this was the concept about the differential equation of linear SHM. Now we will discuss some details formula for next topic. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे acceleration, velocity and displacement equation and displacement. ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. अब ये कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना. एक्सेलरेशन हम लोग डिनोटेड बाय ए. तो अभी प्रीवियस इक्वेशन में, सिंस फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन और यू कैन से नो दैट, तो यू नो दैट व्हाट, आपको क्या पता है सर? यू नो दैट कि your acceleration is minus omega square x. This is the formula for your acceleration, that is minus omega square x. Acceleration is the
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्सेलरेशन फॉर्मूला है फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मीन पोजीशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज द बॉडी परफॉर्मिंग द लीनियर एसएचएम। ये स्प्रिंग है आपका, जस्ट अ मिनट, ये आपका स्प्रिंग है, ध्यान से देखते हैं जरा। ये इसका मेन पोजीशन है। ये स्प्रिंग क्या करता है, ये मेन पोजीशन से आगे जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। तो ये इसका मेन पोजीशन है, ओरिजिन। ये इधर से मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक पॉइंट, ये पॉइंट पी तक, P1 तक। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, तो बोलने का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से ली जाती है। तो एट मीन पोजीशन अगर मैं बात करूं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन का मतलब ये जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन पे होगा, वहीं पे। तो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट, उस बॉडी का उसी पॉइंट से कितना होगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो x की वैल्यू जीरो पुट अप कर दूंगा, तो योर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो रिमेंबर वन थिंग, एट द मीन पोजीशन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो एंड इट विल बी मिनिमम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड है एट एक्सट्रीम पोजीशन। सेकेंड क्या है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये फर्स्ट था। तो सेकेंड है एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं आप लोगों से, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इसके मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एक्सट्रीम पोजीशन होगा। आइदर ये इधर होगा या इधर होगा। ठीक है, अगर ये इधर हुआ तो इसको मैं प्लस ए लिखूंगा, अगर ये लेफ्ट साइड में तो इसको माइनस ए लिखूंगा। तो इट विल बी प्लस और माइनस ए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लस और माइनस ए। यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट अप करेंगे बेटा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू प्लस और माइनस ए। जब पुट अप करेंगे तो माइनस माइनस तो वो भी अगेन प्लस और माइनस ही बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला, दिस इज योर एक्सेलरेशन फॉर्मूला। बट मैं मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। ये पॉइंट को आपने याद करके रखना है, ए ओमेगा स्क्वायर। एट एक्सट्रीम पोजीशन your acceleration will be equals to a omega square. Your acceleration will be equals to a omega square. Understood this one? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको इतना? वेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। Since we know that the acceleration formula, because we have to derive the equation of velocity from with the help of acceleration. तो acceleration is a equals to minus omega square x. A equals to minus omega square x. Since you know that acceleration is dv upon dt. Acceleration is what? dv upon dt. We'll put here, so we will get dv upon dt, that is equals to minus omega square x. Again, now we'll do what, we will multiply by and divide by dx in left hand side. So it will be dv upon dt into dx upon dx, that is equals to minus omega square x. तो न्यूमरेटर को सफल कर देंगे, dx इधर ले लेंगे और dv को इधर ले लेते हैं। it will become dx upon dt into dv upon dx is equals to minus omega square x. dx upon dt is what? dx upon dt is the velocity v into dv upon dx, that is equals to minus omega square x. dx को इस साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get v into dv equals to minus omega square x into dx, minus omega square x into dx. On integrating both the side, integrating both the side, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज जब हमें डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो डेरिवेटिव लेते हैं।
यहाँ पे अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। v integration of v is what, v square upon 2 integration of minus omega square take outside, integration of x is what, x square upon 2 plus c, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है। बट हियर c इज द दिस वाज द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, सो कांस्टेंट c यहाँ पे है, तो c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो फॉर द वैल्यू ऑफ c, for the value of c, for the value of c, अगर हम लोग c की वैल्यू की बात करें तो एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी 0 हो जाता है और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या बन जाता है, a। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फ्रॉम हियर बेटा c इज इक्वल्स टू व्हाट, c इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, c इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू हम इधर पे पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो ये c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। जब c की वैल्यू इधर पे आप पुट अप करेंगे तो यू विल गेट v स्क्वायर अपॉन, you will get v square upon 2, v square upon 2 that is equals to minus omega square x square upon 2 plus ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये तुम्हारा बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये v स्क्वायर की वैल्यू है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ से, v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई थे ये सब्ट्रैक्शन होती है, ये यहाँ से कुछ गायब नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर नहीं गायब होगा यहाँ पे, तो ये रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। मीन्स कभी भी अगर आपको ऑसिलेशन में वेलोसिटी फाइंड आउट करना हुआ तो यू विल यूज दिस रिलेशन, आप ये रिलेशन को यूज करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये रिलेशन आप यूज करेंगे, ठीक है। ये रिलेशन आपको यूज करना है। फिर उसके बाद में अब आपको अगर इधर से वेलोसिटी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करना हो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, एट मीन पोजीशन बात करते हैं। अगर मैं मीन पोजीशन की बात किया तो मीन पोजीशन पे योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 0, यहाँ पे आपने 0 पुटअप किया तो आपका a स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा, रूट के बाहर बनेगा a, तो वहां से वेलोसिटी आपकी बन जाएगी a ओमेगा। क्या बन जाएगी, a ओमेगा। और दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन द बॉडी परफॉर्म द ऑसिलेशन एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑब्टेन विल बी मैक्सिमम। सेकंड है एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी देखो जरा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी के लिए x की वैल्यू क्या हो जाती है, a। अगर मैंने x की वैल्यू a यहाँ पे पुटअप किया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जैसे ये वाला टर्म 0 हुआ तो वहाँ पे होल टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई। तो एक बात याद रखने का, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इन ऑसिलेशन इज मिनिमम, दैट इज 0, that is 0. This is the relation for velocity body performing the SHM, linear simple harmonic motion, ठीक है, linear ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। वेलोसिटी इक्वेशन अपना हो गया, नाउ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट, सो सिमिलरली जैसे कि हमने ऐसे लेसन से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे।
तो सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी इक्वेशन, we know that the velocity equation v equals to what, omega root of a square minus x square, यही होता है. And the since velocity is equals to dx upon dt, so you will put here, it will become dx upon dt, that is equals to omega root of a square minus x square. अब x वाले टर्म को एक साइड करो, बाकी x में ये पूरा आ जाएगा रूट, और dt इधर ले लो, तो यू विल गेट dx अपॉन रूट अंडर a square minus x square equals to omega into dt. Okay, omega into dt, you will get omega into dt. So तो अभी ये देखो, अभी हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी से हम लोग निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट. तो इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, जब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गेट 1 अपॉन रूट अंडर a square minus x square into dx equals to integration of omega into dt. So my dear, यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ a बाई x बाई a, सॉरी, यहाँ साइन इनवर्स ऑफ x बाई a इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है, ओमेगा टी प्लस अल्फा कांस्टेंट. तो फ्रॉम हियर x अपॉन a इज इक्वल्स टू, ये साइन इस साइड आएगा, जब साइन इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स इधर आके क्या तुम्हारा हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. अल्फा इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, अल्फा इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. तो फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगा. गॉट इट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगा. नाउ अभी जरा हम लोग इधर देखते हैं, केसेस है इधर पे कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन. तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन 0 होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड a के बराबर होगा. बट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसको अपने को चेक करना है. तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, व्हेन displacement starts from main position, starts from मेन पोजीशन, जब ये मेन पोजीशन से स्टार्ट होएगा, तो एज यू नो एट मेन पोजीशन से जब स्टार्ट होएगा मेन पोजीशन से, तो उस टाइम स्टार्ट हो रहा है तो t की वैल्यू 0 है, उस समय पे x की वैल्यू क्या होगी, अगेन 0, मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है, x की वैल्यू 0, इधर पे पुट अप करो. सो यू विल गेट 0 इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी 0 प्लस अल्फा. तो a इधर पे आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी. जब ये अल्फा की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट अप करोगे, तो योर x विल बिकम, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x विल बिकम a साइन ऑफ ओमेगा टी. This is the equation when the body starts oscillation from main position, that is the a sin omega t, that is the a sin omega t. ठीक है, तो when the body start oscillation from main position, the displacement equation will be a sin omega t. Now we'll discuss the displacement equation when the body start oscillation from extreme position. When the body start oscillation from extreme position, तो when oscillation starts from, oscillation starts from extreme position, extreme position, जब ये extreme position से start होगा तो at that time x will be 1 a,
एंड योर टाइम स्टार्ट हो रहा है 0. As you will put the value here, then you will get a equals to a sin of ओमेगा टी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा टी जीरो होने की वजह से, प्लस अल्फा, ए गेट्स कैंसल, 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1, और दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 बोले तो 90. तो 90 इधर पे पुट अप करोगे, देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90. टेल मी what is the sin 90 plus theta, that is the cos theta. So x equation will become a cos omega t, theta is the omega t, a cos omega t. So my dear, displacement equation when the oscillation starts from extreme position, then it will be a cos omega t, it will be a cos omega t. So a cos omega t, x equals to, it will be a cos of omega t. This will be your displacement equation. So this was very simple and interesting concept, displacement equation, velocity equation and acceleration equation. आई होप माय डियर आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इसका. ठीक है.